Hello everyone. So far our chapter is completed now. Even though I'm giving you the explanation of your concluding part. The last heading is the is remain once. So now we read it once and understand that what are the challenges of free and fair election in India. Now, as you already getting that what is election, what is electoral politics, and what makes in India or the system of India as an election. Okay, so here I make a take in the in drawbacks that we already study, that what are the drawbacks of the election system. Okay, in any democratic country there were lots of causes and pros, or there are lots of cons and pros. Okay, there are lots of merits or demerits, albeit the election taken place and lots of changes and lots of people verdict is there, so that a very clear cut information or very clear cut decisions were made by by the citizens of any nation, of especially of democratic nation. So now come to the very basic essence, that what are the drawbacks of the election in India. As we already studied, that if you are not able to understand with this link or with this specific slide, specifically with this slide only, okay, the rest, so you can go to I also put my link of the previous video or prior video in the description box, so you can go with that. Okay, now come to this, that drawbacks, what are the drawbacks of the Indian election system. Firstly, that as we already know that many times the people people's put or include the false names with the and false names in the election list, and due to which the peoples used to not give the vote. Okay, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि किसी आर नाम के व्यक्ति का इलेक्शन था, ठीक है, किसी राहुल नाम के व्यक्ति को इलेक्शन लिस्ट में नाम दिया गया है, पर वो राहुल व्यक्ति मर चुका है, ही इज़ नॉट एनी मोर, है ना, इवन दो द अनदर पर्सन विद द सेम नेम गो फॉर द इलेक्शन. फॉर दिस सॉल्यूशन, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, द epic is introduced, which is also known for the, ओके, एपिक इज इंट्रोड्यूस, मतलब कि वोटर आईडी कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, है ना, ये आपको पता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी. आज वी नो दैट व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वाज इम्पोज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और द स्टेट इलेक्शन कमीशन और बाय द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन. So the people used to so the political parties was confined, the powers and the money of political parties confined under that code of conduct, and if they excess or if they breach that rule or law, a model code of conduct, then their elections will be announced as is unlawful or null and void. Getting my point? So many times it happens that the government officials क्या करते हैं कि कोई कई बार, जैसे समझ लो अभी हमारे राज्य में बीजेपी की सरकार थी, है ना, बीजेपी की सरकार है वापस वैसे, तो इलेक्शन हुए, तो आप इलेक्शन में भले ही सरकार इलेक्शन के पहले किसी की भी रही हो, बट ड्यूरिंग इलेक्शन द पर्सन who resigned from the specific post of the specific previous post from the government, so he or she has no right to use the government buildings, government officials, the officials means the government servants, and nothing else. Even the vehicles is not given to that specific persons who are again stands for election, even though they won the election last time. Okay, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का इस्तेमाल करे इलेक्शन में, भले ही बीजेपी की सरकार पहले भी रही हो, उसके बावजूद क्या नहीं हो सकता, दोबारा हम क्या नहीं कर सकते, बीजेपी की सरकार भले ही रही हो. देखो यहाँ मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी के बारे में ना बोलकर सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ, सो यू गेट अ वेरी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन. ओके, नाउ देखो होता क्या है कि समझ लो यहाँ कोई एक्स पार्टी थी, है ना, इसका इलेक्शन हुआ, इसका ये 2014 के इलेक्शन में जीत गई, है ना, 2014 के इलेक्शन में एक्स पार्टी जीती. अब 2014 के बाद 2019 में इलेक्शन हुए, समझ में आ रहा है बेटा, 2019 में इलेक्शन हुए, तो अब ये जो सरकार थी, मतलब जो एक्स पार्टी थी या जो एक्स गवर्नमेंट थी, वो 2019 के इलेक्शन में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्योंकि वो रेजिग्नेशन देगी बिफोर इलेक्शन, है ना, बिफोर इलेक्शन वो रेजिग्नेशन देगी जब भी इलेक्शन होंगे. जैसे नरेंद्र मोदी जी ने या शिवराज सिंह चौहान ने इलेक्शन के पहले क्या किया था, अपना रेजिग्नेशन दिया था. सिमिलरली इलेक्शन के पहले रेजिग्नेशन दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और द रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज, और वो क्या करते हैं, रेजिग्नेशन देने के बाद दोबारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का या गवर्नमेंट व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते. If they do so, then their declaration of result, or even though they won the election, their election should be declared as null and void, है ना, and will be declared as null and void. Okay, now the third one is that excessive use of money by rich candidates and big parties.
कई बार ऐसा भी होता है कि इलेक्शन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब कई सारी पार्टीज़ क्या करती है, बहुत ज़्यादा पैसों का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण क्या होता है, पैसों की फिजूल बर्बादी होती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जहां आप पॉवर्टी को बहुत ज़्यादा मुद्दा बनाकर चलते हो, उसी पॉवर्टी के लिए आप और पैसे बर्बाद कर रहे हो, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखकर इलेक्शन कमीशन ने कुछ लिमिट्स तय करी है, या आप लोग जानते हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि वो लिमिट्स क्या है, कितनी लिमिट दी गई है अकॉर्डिंग टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टू पुट और टू पुट मनी ऑन द इलेक्शंस। ओके, कितना कौन से किस इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अकॉर्डिंग टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और राज्यसभा और स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शंस में कितना पैसा खर्च कर दिया जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अकॉर्डिंग टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। गेटिंग इट नाउ? द लास्ट वन इज इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑफ द पोलिंग डे। क्या किया जाता है, कई बार ना वोटर्स को बहुत डोमिनेट किया जाता है, तो वोट देते हैं ना, उनको काफ़ी डोमिनेट कर दिया जाता है कि आप हमें ही वोट दो, नहीं तो तुम्हारे रिश्तेदार हमारे कब्जे में है। सो लाइक दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट गिवन बाय दी पार्टीज एंड मैनी टाइम्स रिगिंग। नाउ व्हाट इज रिगिंग? The rigging is a way in which the person change his or her name and give vote on the name in the name of another behalf. Getting it? कोई भी अनलॉफुल और कोई भी ऐसी एक्टिविटी विच इज़ नॉट गुड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ नोन एज रिगिंग। गेटिंग इट? है ना, पोलिंग डे में, पोलिंग डे मतलब कि इलेक्शन डे में, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, इलेक्शन डे में। ओके, now come to the even though all these, albeit we have lots of drawbacks in India in election system, even though our election system is democratic. Why? Because we have an independent election commission, which means that the government has no right to interfere in the election commission of India. The president appoints the chief election commissioner, even though they have no right to dismiss the chief election commissioner. Only the chief election commissioner of independent election commission is resigned from his or her post when the Lok Sabha and Rajya Sabha combinedly passed an impeachment motion and tried to remove it from his or her office. Getting it? Now the B1 is now the B is that the popular participation, as I already discussed or as I already explained you, that number of people are participating in election. The situation in our country is that the literate peoples are participating less comparatively to the illiterate peoples, because illiterate peoples are participating more because they know that if we are not participate in election, that we did not get any ration and all. Okay, कई बार लोग इलेक्शन इसलिए डर के मारे भी वोट देने जाते हैं ताकि कम से कम हमारा वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तो हमको राशन वगैरह मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें भी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इलिटरेट पीपल्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि हम इलेक्शन नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, तो कोई ऐसा मतलब कि मैनियक पर्सन या कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति आ जाएगा हु इज़ वेरी रूड, बहुत क्रूल हो, जो अपनी ही मनमर्जी करेगा थोड़ा सा, है ना। तो इस तरह ऑटोक्रेटिक ना हो, ठीक है। तो इस तरह के अपने आप को बचाने के लिए, किससे, ताकि अच्छा कैंडिडेट उनके लिए काम करे, तो वो लोग इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो ट्रेंड है वो और बढ़ते जा रहा है हमारे देश में। भले ही रिच फैमिलीज कम पार्टिसिपेट करती है, बट मिडिल क्लासेस, दोज हु आर एजुकेटेड वेल, वो काफ़ी पार्टिसिपेट करने लगे। इवन दो मैंने तो पिछले 10 सालों में फ्रॉम 2014 to 19 I have saw many changes in the election commission in India, even in the election system, because initially जब 2014 के पहले या 2010 तक, जब स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं थी या ज़्यादा वोग में नहीं थी सोशल मीडिया, तब लोग काफ़ी कम वोट दिया करते थे। बट द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ फ्रॉम लास्ट 1 decade is like tremendous. Very large amount of people, youth are participating, because they only want to put a DP, or they only want to put a very good photo on in their Instagram or in the social media, so they get a very attention and all that, है ना। तो कई बार मैंने ये चेंजेस देखे हैं कि भले ही अटेंशन के लिए ही सही, बट एटलीस्ट वोट जो है आजकल लोग देने लगे हैं। तो हमारे देश में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, जिसके चलते जो व्यक्ति है वो जानता है कि किसे चुनना है किसे नहीं, क्योंकि हमें क्लियरली दिखता है कि कौन अच्छा है और कौन खराब, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ वोटिंग आउटकम, मैंने आपको बताया है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टी अपोज भी कर सकती है कि जो इलेक्शन किया गया है वो अनलॉफुल है, या ऐसे खारिज कर दिया जाए, है ना, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये डिसीजन सही नहीं है। बट पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को भी जानती है कि यदि इस बार हमें हराया गया है, तो अगले बार वो पार्टी जीतेगी, हारेगी, है ना। समझ में आ रहा है क्यों? इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, इस डिसीजन को
एज अ पीपल वर्डिक्ट, मतलब कि ये जो डिसीजन है वो जनता का है, इसलिए एक्सेप्ट कर लेती है, और इस कारण हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो देश का इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है, बिकॉज पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। द वेरी एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इज व्हाट, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, एंड इन आर नेशन इलेक्शन the each and every citizen, irrespective of caste, religion, gender, whatever, but they are participating in election, except maniac have no right to participate in election, okay. And the person who do lots of excessive amount of crimes, they also have no right to participate in election, okay. Apart from that, each and every citizen have right to participate in election. Getting it now? एक्सेप्टेंस ऑफ वोटिंग आउटकम, ये हमने देख लिया है कि पीपल्स एक्सेप्ट, द पार्टीज एक्सेप्ट दैट द वॉट एवर द डिसीजन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेनी टाइम्स, एक्सेप्ट दैट डिसीजन एज अ पीपल वर्डिक्ट. Getting it now? The last one is that now the come to the outcome of Indian elections speaks for itself. पिछले 20, almost from the last 50 years after the independence of India, whenever the election take place, the decision is so drastic, and was so changeable, and so miracle like that. Many times the ruling party lose the election, है ना. कई बार ऐसा देखा गया है कि रूलिंग पार्टी जो है वो इलेक्शन लूज कर देती है, क्योंकि पीपल जो है वो डिसीजन काफ़ी अच्छा लेना जानते हैं. गेटिंग इट? उसके बाद ये भी एक स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों में, ठीक है. पहली बात. दूसरी बात ये कि every 2 out of 3 elections held in last 15 years, the ruling party law. पिछले 15 सालों में 3 में से जो 2 इलेक्शंस हुए उसमें रूलिंग पार्टी हारी है ना. अगर मैं बात करूँ, द कांग्रेस इज इन पावर, द सेंट्रल गवर्नमेंट, हुआ क्या, रूलिंग कांग्रेस हारी 2014 के इलेक्शन में, बीजेपी कम इन टू द पावर, okay. So when the people saw that the party or the ruling government is not do the work properly, then they have right to throw it from the defenestrate from their power, and put the another government or put the another party as a government. Getting it now? The second one is, in the US, an incumbent or sitting elected representative rarely लूज एन इलेक्शन. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होता क्या है, जो ऑलरेडी, मतलब सिटिंग यहाँ मतलब है इनकम्बेंट, और सिटिंग का यहाँ मतलब है कि जो पहले से ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी में है या जो ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट में है, उनका हारना काफ़ी कम रहता है, मतलब वो हारते नहीं है. ऑन दी अदर हैंड, इंडिया में जो सिटिंग एमपीज और एमएलएज है वो अपने इलेक्शंस हार जाते हैं. समझ में आ रहा है? मतलब कि जो ऑलरेडी इलेक्शंस है, जो सिटिंग एमपीज और एमएलए हमारे देश में, भले ही वो सरकार में हो, लेकिन उसके बाद अगले इलेक्शन में भी वो हारते हैं ना. ये और ये पॉइंट समहाउ सेम ही है, क्योंकि द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्ट और द मेंबर्स ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट इज आल्सो द एमएलए एंड एमपी. गेटिंग इट नाउ? In states and central level respectively. Now, candidates who are known to have spent lot of money on buying votes, those within criminal connections often lose election. Definitely, अगर आपको ये पता है कि आपकी क्लास में जो गुंडा है, मतलब आपकी, अगर मैं इस एग्जांपल से लूँ तो आपकी क्लास में समझ लो 2-3, आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं. अब उस 45 स्टूडेंट्स में से आप ये जानते हो कि जो बच्चा कैप्टन और क्लास टीचर बिल्कुल नहीं आई है या नए आए हैं, और उन्होंने उस बच्चे को जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसका इंप्रेशन पहला काफ़ी अच्छा था तो उसको बना दिया. पर आप ये जानते हो कि वो बच्चा जो है ना पढ़ाई में अच्छा है, ना वो किसी और चीज़ में अच्छा है ना. आई एम नॉट हिटिंग इन एजुकेशन, बट मैं कहूँगा कि वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी करता है और वो थोड़ी सी धमकी वगैरह भी देता है ना. तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप इस बात को जानते हो कि इसके कनेक्शन, मतलब जो वो है, जो उसकी क्रिमिनल आइडियोलॉजीज़ है, वो काफ़ी क्रिमिनल माइंडेड, ऐसा कुछ कह सकते हो आप, है ना. या अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, या अगर आप किसी ग्रुप में जा रहे हो और आप जानते हो कि वो क्रिमिनल कनेक्शन है, तो आप उससे या तो डर के रहोगे या तो उसको हटाने की कोशिश करोगे डेफिनेटली. तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन में क्या होता है, जिनके जो वोट कैंडिडेट्स का इलेक्शन में क्रिमिनल कनेक्शन रहता है, लोग उनको नहीं चुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये जीता तो भैया फिर हमारी बैंड बजने वाली. दैट मीन्स कि डेफिनेटली दे विल गिव लॉट्स ऑफ शॉक्स टू अस, लॉट ऑफ depressions to the citizens, and lot of pressure to the citizens without any with lot of cost. Getting it? Now, barring very few disputed election, the electoral outcome are usually accepted as people verdict, as already explain you that कि people जो है, कई बार इलेक्शंस के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि गलत इलेक्शन हुआ है, पार्टीज बोलती है कि हमें डिसीजन फिर से चाहिए, फिर से इलेक्शंस होते हैं, री इलेक्शंस होते हैं. बट कई बार, many times, majority of time it happens that people or the parties accepted that yes, the decision is of people verdict, that why we accept it. Getting it now? हाँ, वो बात अलग है अगर हेर फेर कर दिया जाए. ये हमारा मेन टॉपिक, that what are the challenges to the fair and free and fair election.
फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन इन इंडिया इज बेसिकली फ्री एंड फेयर। हमारे देश में जो इलेक्शन है वो काफ़ी फ्री और फेयर है, मतलब कि फ्री इन द सेंस काफ़ी स्वतंत्रता से हर व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। नो वन हैज़ राइट टू अबैंडन और नो वन हैज़ राइट टू कन्फाइन द पावर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी व्यक्ति कैंडिडेट के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है एज अ कैंडिडेट, एंड एवरीवन हैज़ राइट टू डू वोट एक्सेप्ट two persons that are maniac and the next one is the person who do excessive crimes, ठीक है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में होता क्या है, बेसिकली हमारे देश में क्या होता है कि हर व्यक्ति के पास इलेक्शन में खड़े होने का, मतलब ऐसा स्टैंड करने के लिए इलेक्शन में राइट है, और साथ ही साथ इलेक्शन वोट देने का भी। तो हमारे देश में सबको इंडिपेंडेंट से एक तरह से देखा जाए तो लिबर्टी है या लिबरल है सभी लोग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन या पार्टिसिपेशन। फेयर इलेक्शन में थोड़ा सा डाउट है हमारे देश में, थोड़ा सा मतलब कि डाउट इन द सेंस कि डिसीजंस इलेक्शन कमीशन अच्छे देती है। इलेक्शन कमीशन नेवर मैनिपुलेट द डिसीजंस ऑफ इलेक्शन, बट because election take in a very large amount and in a very vast area, so how could one person dominates the election? That's why the फेयर इलेक्शन में थोड़ा सा डाउट रहता है। इलेक्शन कमीशन की बातों को लेकर नहीं कि इलेक्शन कमीशन मैनिपुलेट कर रही है, नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑलवेज गिव अ वेरी गुड एंड वेरी प्रिसाइज डिसीजन, बट आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द फेयर डिसीजन दैट व्हाट टाइप ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स प्लेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज कई बार डर्टी पॉलिटिक्स भी करती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डर्टी पॉलिटिक्स होता क्या है, बहुत ज़्यादा पोलिंग बूथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, डोमिनेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है ना, और सो ऑन। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में ऐसी प्रॉब्लम हम देख सकते हैं, ठीक है। फ्री तो है हम सब पार्टिसिपेट और वोट करने के लिए, पर डेमोक्रेटिकली फ्री है, बट इंडिविजुअली हम फ्री नहीं होते हैं कई बार, है ना। फेयर इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, लोग फेयर काफ़ी कम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं क्या। द पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवली। जो पार्टी है जो इलेक्शन को जीतती है, डेफिनेटली वो सरकार बनाएगी, है ना। ये आपने देखा है 8th क्लास में भी, और हम फिर से बता रहे हैं, जो पार्टी इलेक्शन में जीतती है वो क्या करती है, जिस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स इलेक्शन में जीतते हैं वो क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, गेटिंग इट। और वो अपने राइवलरी, मतलब जिसके खिलाफ वो खड़ी हुई थी उसको हरा कर जीती है, तो डेफिनेटली वो पार्टी होगी जो वो काफ़ी अच्छी होगी अकॉर्डिंग टू पीपल्स वर्डिक्ट। नाउ दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो इलेक्शंस हुए हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फ्री और फेयर इलेक्शन हुए हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा दैट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज लाइक जो माओइस्ट ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन है, झारखंड के कुछ रीजन है, या मैं असम मणिपुर के कुछ रीजन्स हैं, या बिहार के कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां कई बार इलेक्शंस में पोलिंग बूथ में डोमिनेशन किया जाता है और बहुत ज़्यादा हेर फेर की जाती है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह से पीपल वर्डिक्ट ही आया हो, कई कहीं से पॉलिटिकल पार्टीज वर्डिक्ट भी आता है, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी ही वोट दे दे के लोगों को जिता देती है ना। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा। फ्यू कैंडिडेट्स में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयर मीन्स। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो रहते हैं वो पावर, पैसों की पावर या तो क्रिमिनल पावर के कारण क्या करते हैं, जीत जाते हैं, डेफिनेटली, है ना। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस। बट अब ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम रहती है कि 543 सीट्स में थे, अगर कोई 350 या 277 होना चाहिए, वैसे 277 अगर लोग जो है उसमें से क्या हर व्यक्ति जो होगा गवर्नमेंट जो फॉर्म करने वाला है, सबके सब पॉलिटिकली सबके सब क्या लालची होंगे, या सबके सब सिर्फ अपनी पावर के लिए इलेक्शन में खड़े होंगे? द आंसर इज़ नो। उसमें से कम 70% जो होंगे वो थोड़े से लालची होंगे, बट 200 जो होंगे वो सही होंगे, गेटिंग इट, है ना। और बाद में वो जो 70 लोग हैं उनको अगले 5 इलेक्शंस में हरा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो 200 लोग हैं ना वो एटलीस्ट गवर्नमेंट में कुछ अच्छा काम करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है जो इलेक्शन में डिसीजन लिए जाते हैं वो पॉपुलैरिटी और ओवरऑल डिसीजन में देखकर हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा जीत रहा है, और हर जगह से एक से इलेक्शन के डिसीजन नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी का एक कैंडिडेट जो है वो कलपक्कम कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हुआ, मतलब इन द साउथर्न इंडिया, और वो जीत गया। वेयर एज अगर मैं यूपी के किसी एक बीजेपी कैंडिडेट की बात करूं और वो हार गया, तो बीजेपी कैंडिडेट्स या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी होते हैं। क्यों होते हैं डिफरेंसेस? क्योंकि उनका काम रिफ्लेक्ट करता है, उनकी जो काम करने का तरीका है दैट रिफ्लेक्ट्स द वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल कैंडिडेट। सो दिस इज़ द वेरी एसेंस, या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हु हैज़ अ वेरी इफेक्टिव वर्क। तो इवन दो हमारे देश में बहुत कम एक्सेप्शंस होता है, पिछले 50 सालों में ऐसा बहुत कम बार हुआ है
कि बहुत सारे लालची कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शन जीत गए और पूरे के पूरे देश को बदलने की कोशिश की हो? द आंसर इज़ वेरी लो एंड द आंसर इज़ नो। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, नहीं तो शायद हम फिर से गुलाम हो जाते हैं ना। तो अब आते हैं क्या, लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ इलेक्शन टू आवर अटेंशन। अब वो लिमिटेशंस हम देखते हैं जिसके कारण हमारे देश में क्या है, अब वो चैलेंजेस देखते हैं जो हमारे इंडिया के इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस में है ना, जो हमारे देश के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जो चैलेंजेस हैं वो देखते हैं। नंबर वन, जिस कैंडिडेट के पास ज़्यादा पैसा रहता है ना, वो मोस्टली क्या करता है, जीत जाता है। क्योंकि वो क्या करता है, ब्राइब करता है अलग अलग तरह से, है ना, अलग अलग जगह पर। जैसे समझ लो, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो डेफिनेटली क्या करेगा, नंबर वन, वो अलग अलग चैनल्स में, हर चैनल में उसका बस चले तो वो हर एक चैनल में क्या करेगा, अपने एक एडवर्टीजमेंट देने लगेगा कि आप हमें वोट दीजिए। नंबर वन। नंबर टू क्या होगा, जगह जगह पर उसके बैनर्स लगे होंगे, पैम्पलेट्स लगे होंगे, वो उस बैनर्स को भी खरीद लेगा। नंबर थ्री क्या, उसके पास ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे तो कार्यकर्ता ज़्यादा जगहों पर जा सकते हैं, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वर्कर्स है वो अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, जिससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये जो कैंडिडेट है वो काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, तो ऐसा कैंडिडेट जो कई बार, जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो कई बार जीत जाता है बड़े और अनफेयर एडवांटेजेस, ठीक है, अनफेयर एडवांटेजेस से। लेकिन स्मॉलर पार्टीज या जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो कई बार ऐसे इलेक्शंस लूज कर देती है या लूज कर देती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, उनके पास लिमिटेड पैसे हैं तो वो काफ़ी लिमिटेड ही कर पाते हैं, है ना। समझ लो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ जबलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ जबलपुर नहीं आता है, द नियर बाई एरियाज ऐसे कई सारे रीजन है जो जबलपुर कॉन्स्टिट्यूंसीज में आते हैं। अब बहुत डिटेल में बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सिर्फ इतना देखिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है, कई बार 3-4 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। तो अब ये बताइए, जिसके पास ज़्यादा पैसे है क्या वो कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में घूम पाएगा? द आंसर इज यस। वेयर एज द पर्सन हु हैज़ लो मनी और द पर्सन हु हैज़ लो बजट, he is not or she is not able to groom or roam around the different states, and due to which leads to the loss of their election. Getting it now? The second one is, in some parts of country candidates with criminal connection have been able to push the other out of the electoral race and secure ticket from major parties. कई बार ऐसा होता है कि समझ लो एक ही पॉलिटिकल पार्टीज में दो कैंडिडेट है, लेकिन जिसका क्रिमिनल कनेक्शन है उसका सिलेक्शन हो गया या उसको टिकट दे दी गई, क्योंकि पता है, अगर पॉलिटिकल पार्टी को ये पता है अगर टिकट नहीं दी गई तो अल्टीमेटली दे विल थ्रो आर पार्टी और दे विल डेफिनेटली बैन आर पार्टी। कुछ ना कुछ करके हमारी पार्टी में कुछ ना कुछ तो डर्टी पॉलिटिक्स करके हमारी पार्टी को बैन करा देगा। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी मोस्टली क्या करती है, ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है जिसका क्रिमिनल कनेक्शन हो या जिससे डरती हो, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टी में अगर पॉलिटिकल पार्टी ने किसी क्रिमिनल कनेक्शन वाले को खड़ा भी कर दिया टिकट से, है ना, तो अब जो दूसरा कैंडिडेट उसके अपोज में या उसके अगेंस्ट खड़ा होगा ना, उसको वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है और अल्टीमेटली उसको क्या करना पड़ता है, अपने इलेक्शन से विड्रॉन करना पड़ता है। गेटिंग इट नाउ? कई बार ऐसा होता है कि मोस्टली ना मेल सिलेक्शन में थोड़ा सा मेल सिलेक्शन में ना तो फिर भी कम होता है, फीमेल सिलेक्शन में कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं नहीं करती आपस में कंपटीशन, बट मेल जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर पावर और जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पावर विल कम इन आवर हाउस, वुड डेफिनेट हैव टू कम इन आवर हाउस, दे मैनिपुलेट द ऑल इलेक्शन। और कई बार क्या करते हैं, दूसरे कैंडिडेट को हिट करने की कोशिश करते हैं, है ना, हिट इन द सेंस चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो कल्चरली हो, चाहे वो अगर मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ कुछ भी, है ना, वो हर तरह से तंग करने की कोशिश करते हैं जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। देखो इसका एग्जांपल मैं नहीं इसका एग्जांपल आप खुद जानते हो। देयर इज वन फेमस पार्टी, there is one famous party who is very much there is one famous party who originate in 1880 who exist in the 1885 and formed by AOU, and that party dominates even in the 2000 till 2014 till 2014, because two times it also won the election, and very prominent leaders are there, the Rajiv Gandhi, Indira Gandhi and Manmohan Singh, है ना, and recently the one of the and the Rahul Gandhi is also there. So the Congress party is a type of party which is mostly dominated by the family. The the party is dominated by the Gandhi family, and that's why क्या होता है कि पार्टी में ऐसा कई बार आता है जो डोमिनेटेड रहती है, हर बार उनके फैमिली मेंबर्स को ही टिकट दे दी जाती है। जैसे अभी हमने देखा रिसेंटली मनमोहन सिंह जी जो गवर्नमेंट बनाए थे, है ना, मनमोहन सिंह जी की जो पावर आई थी ना, वो
सिर्फ इसलिए दी गई थी ताकि वो हमारे पपेट के रूप में काम करे, है ना। उनको कोई ऐसा सिर्फ ये बताने के लिए कि जो कांग्रेस जो है वो फैमिली डोमिनेटेड नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। इवन दो इन द नेक्स्ट इलेक्शन ही फॉट फॉर हिमसेल्फ और उन्होंने काफ़ी चेंजेस करे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो कि फैमिलीज डोमिनेटेड रहती है, उधर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे आज भी गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हम कांग्रेस को वोट देंगे, उनको ये नहीं पता कि कांग्रेस क्या काम करती है, उनको ये नहीं पता कांग्रेस क्या क्या कर रही है, इवन दो दे आर सेइंग कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो परिवार है वो काफ़ी फेमस है, जस्ट विद अ बिग हेडिंग, वेदर इट्स अ गांधी or any other. Okay, I'm not hitting personally anyone, but it's a best example, that's why I'm saying to you. Okay, now the fourth one is very often elections offer little choices to the ordinary citizens. कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन जो रहते हैं वो छोटे या कम जिनके पास जो थोड़ा सा ऑर्डनरी पीपल्स रहते हैं उनको बहुत कम ऑफर करता है। जैसे मैंने बताया कि पैसे कम होंगे तो डेफिनेटली वो इंसान इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे देगा और ऑल सब कुछ कर देगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब होता है गवर्नमेंट जब इलेक्शन के लिए कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो क्या करता है, अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरने के टाइम पे इलेक्शन कमीशन को पैसे देता है, 5,000 10,000 फॉर SCs, फॉर 5,000 ST के लिए भी 5,000, 10,000 ST जनरल वालों के लिए, है ना, इन द स्टेट, इन स्टेट इलेक्शंस। तो होता क्या है, ये जो कैंडिडेट्स रहते हैं इनको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि हर कैंडिडेट जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दे पाता है और ना ही वो अच्छे से इलेक्शन लड़ पाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ऑर्डिनरी सिटीजन्स को बहुत कम एक्सपोजर मिलता है इन इलेक्शन। ठीक है, ठीक है। नंबर 2, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर ह्यूज डिसएडवांटेजेस। डेफिनेटली वो पार्टी जो अभी इमर्ज हुई है ना, या वो पार्टी जिसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, उस पार्टी को थोड़े कम एक्सपोजर या कम अटेंशन दिया जाता है कंपैरेटिवली द पार्टी जो फेमस हुई है किसी भी ऐसे टॉपिक्स को लेकर विच इज़ नॉट गुड इनफ। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जैसे आम आदमी पार्टी जो फेमस हुई थी वो किस लिए हुई थी? इंडिपेंडेंटली जब इनिशियली जब अन्ना हजारे जी ने लोकपाल बिल के लिए कहा था, उसके बाद ही आम आदमी पार्टी इमर्ज हुई है और उसमें ऐसे ऐसे लीडर्स आ गए जिनका मतलब कि कभी ऐसा किसी ने उम्मीद नहीं की थी, एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी कि एक जो लोकपाल बिल होगा या एक लोकपाल मूवमेंट होगा वो इस तरह से टर्न होगा कि आम आदमी पार्टी बन जाएगी। बट आम आदमी पार्टी आज काफ़ी फेमस है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन मूवमेंट, है ना। तो अगर आप कोई इनिशियली कोई पार्टी बनाना चाहते हो, कंसीडर इट एज अ जोक और कंसीडर इट एज अ जेस्ट, या फिर सीरियसली भी ले सकते हो। अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो सबसे पहले कोई ऐसा मुद्दा ढूंढो जिससे आप फेमस हो जाए, उसके बाद आप इलेक्शन लड़ो। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कैंडिडेट बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के खड़ा होता है, इंडिपेंडेंटली खड़ा होता है, जिसे कहा जाता है निर्दलीय, मतलब बिना किसी दल का कैंडिडेट या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वो भी उसको भी कोई लोग ज़्यादा नहीं जानते और ना कोई पार्टी का उसका पास नाम है या कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो उसको सपोर्ट कर रहा हो, वो अकेले खड़ा हुआ है फॉर वॉट, जस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि वो देख रहा है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। इवन तो कई बार लोग क्या करते हैं, अरे अकेला खड़ा है ये क्या करेगा हमारे लिए, ऑब्वियसली अकेले व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता है, कई बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हार जाते हैं। बट रिसेंटली मध्य प्रदेश में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें एक पर्सन हु इज ट्रांसजेंडर, he stands for election, and then after he got the second largest vote in that specific district or in that specific constituency. So this shows that how the independent candidates, the popularity of independent candidates many times become so rich, that become so powerful that they get the second largest votes, and many time the people with independency get the largest amount of vote. So ऐसा कई बार हो भी जाता है, बट वो बहुत माइनर केसेस में होता है ना, मेजॉरिटी केसेस में नहीं। समझ में आ रहा है। और जो बिगर और बड़ी पार्टीज रहती है वो कई बार जीत जाती है ऐसे कैंडिडेट्स को हराकर जो कि इंडिपेंडेंट या स्मॉलर पार्टी का होता है। ठीक है, नाउ आपकी बुक में एक काफ़ी अच्छा कार्टून दिया गया है, ये है इलेक्शन के पहले का, ये है इलेक्शन के बाद का। ठीक है, जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे और सब लोग खड़े हुए हैं, है ना। लेकिन होता क्या है, जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं, मतलब कि जो है ना ये सब कैंडिडेट्स है बेटा, ये जितने भी हाथ जोड़ के खड़े हैं ना ये सब कैंडिडेट्स है, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये सब जिन सभी कैंडिडेट्स है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये जितने ही कैंडिडेट्स है इलेक्शन होने के बाद क्या करते हैं, उस सिटीजन को ही भूल जाते हैं जिसने उनको जिताया है। गेटिंग इट, ही इज सिटीजन, ये जो सिटीजन है अब उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। ये जो कैंडिडेट्स है वो चलते हुए बस अपना काम बन गया और वो लोग निकलते जा रहे हैं।
तो कई बार ऐसा भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, सिर्फ अपना काम निकालने के लिए लोगों के हाथ पैर जोड़ती है और हमें जताइए करके जीत तो जाती है और बाद में अपने वायदे भूल जाती है या वादा भूल जाती है, ठीक है, प्रोमिस भूल जाती है। दिस वन ऑल्सो शोज कि वोटर्स जो है सिर्फ वादों के या प्रोमिस के बेसिस में पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे पीछे वोट देने के लिए चला हुआ है, बट वो नहीं, क्या होता है वो प्रोमिस कभी पूरे नहीं हो पाते, है ना। या अगर मैं बात करूँ, मेरे पास योजनाएं, घोषणाएं या वायदे हैं, मेरे पास वोट है ना। मेनी टाइम कैंडिडेट्स डोमिनेट पीपल्स। जो एजुकेटेड है वो डेफिनेटली कैंडिडेट्स को अच्छा खासा डांस कराते हैं इलेक्शन में, और जो कैंडिडेट्स जो थोड़े से अनएजुकेटेड या जो थोड़े से अवेयर नहीं होते इलेक्शन को लेकर, वो खुद बेचारे प्रोमिस के पीछे या है ना प्रोमिस के पीछे भागते भागते क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं और वो प्रोमिस कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये प्रोमिस करते हैं। मेनी टाइम्स ऐसा होता है, बट मेनी टाइम्स सम कभी कभी ऐसा होता है ना, बट कई बार ऐसा नहीं भी होता है। क्यों क्यों नहीं होता है, अब वो देखते हैं। कई बार ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को ये डर रहता है कि अगर उनने काम नहीं किया तो क्या होगा, सरकार जो है गिर जाएगी अगले 5 साल पर, मतलब कि हार जाएगी। तो इसलिए भले ही वो कैंडिडेट अपनी लालच के लिए भी क्यों ना बना हो मिनिस्टर या कुछ भी, बट उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो काम नहीं करता है तो होगा क्या, अल्टीमेटली द इलेक्शन विल नॉट बी इन हिज और हर हैंड आफ्टर 5 years। गेटिंग इट नाउ। कुछ 2-3 वर्ड्स है। बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग का मतलब होता है, क्या होता है, कई बार ना पॉलिटिकल पार्टीज ना क्या करती है, बूथ को कंट्रोल करके रखती है कैंडिडेट्स को सिर्फ जिताने के लिए। 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज या कई पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, जो कार्यकर्ता रहते हैं, दो 20 कार्यकर्ता और 2 कार्यकर्ता try to manipulate the election center और boothing center, और due to which what happen the election affects a lot। इसलिए कई बार क्या होता है, ऐसे एरियाज में जहाँ बूथ कैप्चरिंग का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है, वहाँ आर्मी है ना, वहाँ सिक्योरिटी के लिए कई बार क्या किया जाता है, इलेक्शन कमीशन आर्मी लगा देती है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है, आपको मैंने बताया था कि इलेक्शन के टाइम पे कुछ गाइडलाइंस होती है विच इज फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टेड कैंडिडेट्स, सो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, तो दे हैव टू फॉलो दैट। आप मुझे इसके व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट, आप बताएंगे कि इंडिया के कौन ऐसे क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन के टाइम पे, है ना। मुझे आप लिखकर व्हाट्सएप करिएगा, डोंट फॉरगेट टू डू सो। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने आपको बताया है कि पूरे के पूरे देश को या पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को कई पार्ट्स में पॉपुलेशन के बेसिस में हमारे देश में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि कुछ नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो हो वो क्या कर सके, एक क्या कर सके, एक कैंडिडेट को इलेक्ट कर सके, ताकि हर एक कैंडिडेट उस व्यक्ति का क्या कर सके, सिलेक्शन कर सके और उसके लिए काम कर सके। गेटिंग इट नाउ। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब होता है कि हर व्यक्ति को वोट देने का, हर पार्टी को और हर कैंडिडेट को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का अधिकार है। दैट इज व्हाट लेवल फील्ड, ठीक है। और हर तरह से वो क्या कर सकता है, अपना इलेक्शन कैंपेनिंग कर सकता है। ऐसा नहीं कि पता चले कोई पॉपुलर पार्टी उसको इलेक्शन कैंपेनिंग काफ़ी अच्छा करने दिया जा रहा हो और जो पॉपुलर पार्टी नहीं है उसको इलेक्शन कैंपेनिंग या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इलेक्शन कैंपेनिंग करने ही ना दिया जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। गेटिंग इट नाउ। What is rigging? Rigging is a fraud and malpractices during election by the parties और candidate to increase the vote, है ना। ये जो बेफालतू के काम किए जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, मल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड काम किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वोट जीतने के लिए, उसे कहा जाता है रिगिंग। टर्नआउट का मतलब है परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर, जो वोटर्स 18 साल के ऊपर है उनका बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, और एट द सेम टाइम उनका वोटिंग परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाना, वो क्या है, वोटर्स टर्नआउट या टर्नआउट। नाउ ये जो है ना, ये बैलेट बॉक्स है जो इनिशियली पहले होता था, और इवन दो ये आज के टाइम पे भी कई जगहों पर होता है, बट यहाँ ये जो है ना, ये प्रेसिडेंट इलेक्शन का है ना। वैसा ही कुछ रहता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एमपीज के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। कोई और इमेज मिल नहीं रही थी, बट बैलेट बॉक्स लुक लाइक दिस, अगर आपको वो, ठीक है, और इस तरह से लिखा होता है बाकायदा। नाउ इस तरह के बैलेट बॉक्स होते हैं, है ना, इस तरह के बैलेट बॉक्स होते हैं, और इसमें लिख दिया जाता है इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, स्टेट, कौन से इलेक्शन हो रहे हैं, सेशन, और क्या पोलिंग बूथ का एरिया, बस इतना करके इलेक्शन में इसके अंदर क्या टिकट्स डाल दी जाती है, मतलब बैलेट पेपर। गेटिंग इट नाउ। ये है बैलेट पेपर, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज बैलेट पेपर। गेटिंग इट, बैलेट पेपर। देखो बेटा, बैलेट पेपर है ये, ठीक है, BALLOT बैलेट पेपर। इसमें इलेक्टोरल रोल पार्ट नंबर, इसमें आपको किसी एक व्यक्ति के ऊपर टिक या अंगूठा लगाना पड़ता है, ठीक है, या सील लगानी पड़ती है। समझ लो मुझे वोट देना है, मुझे वोट देना है
ओके मुझे वोट देना है इस पार्टी को, तो मैंने साइकिल पे टिक लगाया या अंगूठा लगाया या सिग्नेचर किया और मैंने बैलेट पेपर को फोल्ड करके क्या किया, डाल दिया। ठीक है, सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर यहाँ डालना पड़ता है, जो वोटर है जो इलेक्ट कर रहा है उसका नंबर डालना पड़ता है, तो वो सब हमें खुद करना, वो सब हमें बताया जाता है कि आप इधर अपने नंबर डालिए। और यहाँ पहले ऐसा होता था बैलेट पेपर में हमें टिक या अंगूठा या हमें सील लगानी पड़ती थी, इट वेरी फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। और उसके बाद फोल्ड करके से क्या करते थे, हम बैलेट पेपर के अंदर डाल देते थे, फोल्ड करके इस बैलेट पेपर के अंदर डाल देते थे। और आफ्टर दैट बैलेट पेपर को सील कर दिया जाता था लाख से, यू गेट दिस, ये जो है दिस इज लाख, ये रेड कलर का जो है ना, इसको जलाकर सील करके जब इलेक्शन जिस दिन अनाउंसमेंट वाला डे रहता था उस दिन काउंटिंग की जाती थी। गेटिंग इट नाउ? अब आते हैं नेक्स्ट में। So the next one is your, wait a second,